Hello, Assalamualaikum class. Good morning. Good afternoon. How are you third year? जी नबील आप आवाज़ आ रही है मेरी आपको? सर एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे जो है वो इसी पे किया था, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग पे किया था. प्रेनिका, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, I am speaking class. Okay, APS style of writing मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था. APS style is writing style and format for academic documents such as college journal, article, books, and is commonly used for citing sources within the field of social sciences. Okay, now it's clear. Okay, fine. APS style of writing मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया है सेकेंड ईयर में, ठीक है. थर्ड ईयर में भी आपका APS style of writing है. Yes, I have sore throat and I don't know what's wrong with my throat. Did you get it, Pranika? Actually, it's only because of online classes. When you will come here, then I feel good to see all of you here. But I think now it is an announcement from the Shalamana Singh College that you people will not come here for the face-to-face classes. I think your online classes will be continued. Am I right? Okay, thank you, Mira. Did you get any notification from Sharma Nursing College for your classes? When your classes will be started, face-to-face classes? Till 12 Feb. Okay, it's mean 2 weeks will be there. You will come before 14 Feb. Okay, 12 Feb mean 13, 14, 15. You people will come on 15 on Monday. Okay, more than 2 weeks it is. After 14 Feb, okay, on 15, inshallah, okay. There will be 2 weeks online classes more with you people, okay. Today is 29th, on Monday. 2 weeks you have, almost 2 weeks if we consider the weekend, Saturday, Sunday, then 15 days is there. Okay. Anyhow, no problem with that. Just okay. Anyhow, are you people happy with this decision or sad? Very sad, really, Ripsha Javed. अच्छा क्यों सेट मैं आप लोग को तो हैप्पी होना चाहिए, बच्चे तो बहुत खुश हैं. Walaikum Assalam, Monica. How are you, dear? Please text in your group that come for the class. I think more people are not interested in online classes. That's why there are only 7, 8, 9, 10 students only in my class. And those students are ready to come in college, I think.
Okay, JP style is writing style format for academic documents such as scholarly journal articles and books and commonly used for citing sources within the field of social sciences. JP style of writing, it is widely used entirely or with modifications by hundreds of other scientific journals, including medical and other public health journals, in many textbooks and in academia for papers written in classes. Characteristics of APS style of citation. Text citation. APS style uses an author date reference citation system in the text with an accompanying references. That mean that to cite any reference in a paper, the writer should cite the author and year of the work either by the putting both in parentheses separated by comma. Parenthetical citation मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से कि पैरेंथेटिकल साइटेशन का क्या मतलब होता है। इसमें जो लिखा हुआ है पैरेंथेटिकल साइटेशन, क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स कहीं नहीं गए हुए, बस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, बाकी वो एंजॉय करना चाह रहे हैं कि अब तो हमारे कॉलेज खुल जाने, हम एंजॉय कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनका पता नहीं है, शायद ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से रहेंगी और आप लोगों को लेनी भी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस। जी मैं इनको तो आवाज़ ही नहीं जा रही जी। पैरेंथेटिकल साइटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेंथेटिकल? जी रिमशा, आप ठीक कह रही हैं कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, ठीक है, लेकिन चेक करना तो है ना। देखिए जो है वो जाहिर सी बात है, वैसे मैं मानती हूँ फेस टू फेस ज़्यादा समझ आती है, लेकिन एनी हाउ इंशाल्लाह 12th को तो फिर आप लोग आ ही जाएंगे ना। पैरेंथेटिकल का मतलब होता है इन कोमास बाय पुटिंग द ऑथर इन द नरेटिव ऑफ द सेंटेंस। आप कोमा में लिखेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, कोमा में लिखना, ब्रैकेट्स में लिखना, ठीक है, जिसको हाईलाइट किया जाता है। रेफरेंस लिस्ट को मैंने आप लोगों को बताया था कि रेफरेंस लिस्ट में किस तरह से किया जाता है, और जो है उसमें टेक्स्ट साइटेशन में किस तरह से किया जाता है। Okay, if you are directly quoted from a work, you will need to include the author, year of publication and the page number of the reference. By P dot, introduce a quotation with a signal phrase that include the author's last name followed by the date of publication in parentheses. According to Jones, 1998, students often have difficulty using APS style of writing, especially when it was their first time. P dot 199, पेज नंबर को हमेशा जो है वो P dot से जाहिर किया जाता है, ठीक है। और APS स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो इसी को कहते हैं कि P dot 199. Jones 1998 parentheses found students often had difficulty using APS style P dot 199. If the author is not named in a signal phrase, place the author's last name, the year of publication and the page number in parentheses after the quotation. वो क्या कहते हैं कि हमेशा जो होता है उसका लास्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम ही यूज किया जाता है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ें करवाई हुई हैं, सेकेंड ईयर में भी शायद आप लोगों ने पता नहीं की थी कि नहीं की थी, क्या लिया था, अब तो याद ही कुछ नहीं सारा बस ऐसे गुम हो गया था तो एनी हाउ भी आप लोग आएंगे तो रिटर्न प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को करवानी है, लेकिन आप लोगों के ये 2 वीक्स भी इसी तरह से चले जाने हैं। थर्ड ईयर की और फाइनल ईयर की आई थिंक क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ना। नहीं मेरा बच्चा एपीए में स्लाइड्स में से आता रहा है क्वेश्चन, आपको मैं पास पेपर सिखाऊंगी तो आप उसमें देखेंगे कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे। क्यों नहीं आते रहे, बिल्कुल आते रहे हैं, लेकिन इस सब उन्होंने जो है मोड ऑफ क्वेश्चन ही जो है वो चेंज कर दिया है। समझ नहीं है कि इन लोगों ने किया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता ना, थर्ड ईयर में भी लास्ट टाइम में क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, एनी हाउ बाकी ले दिए थे उसमें। ओके
If you're directly quoting from a work, you will need to include the author, year of publication, and the page number from the reference, proceeded by P. Dot. Introduce the quotation with a signal phrase that include the author's last name followed by the date of the publication in the parentheses. According to Jones, 1998 students often had difficulty using APA style of writing, especially when it was their first time. P.199 Jones 1998 found students often had difficulty using APA P.199. If the author is not named, a single phrase place the author's last name, the year of publication, and the page number in parentheses after the quotation. She studied students often had difficulty using APA style Jones 1998, P.199. ठीक है. अभी अगर आप लास्ट लाइन देखें, लास्ट लाइन में जो जोन्स लिखा हुआ है, इट्स द सेकंड नेम ऑफ द ऑथर. ठीक है, ऑथर का सेकंड नेम है, ये फर्स्ट नेम नहीं है, सेकंड नेम है. 1998 उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है. ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है लास्ट में, और फिर कोमा है. P.199 का मतलब है कि पेज नंबर 199. ठीक है, इस स्लाइड को पढ़ें. आप लोगों को जो समझ नहीं आती स्टूडेंट्स पूछे मेरे से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है आप लोगों को करवाती हूँ, लेकिन इसको पहले आप सोचें नहीं, बस समझें, और जो समझ नहीं आती मुझसे पूछे, मैं करवाऊँ आप लोगों को. ओके.
जी क्लास, आपने पढ़ा इसको? एनी क्वेश्चन वी वांट टू आस्क? नहीं, वो तो टफ था, लेकिन हम उसको करेंगे ना, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से आता है, किस तरह से नहीं आता है। एट द एंड जो है आप लोगों को पता तो है कि जब अभी एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, अभी उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने काफ़ी, मैंने आप लोगों को, मेरे को याद होगा कि हम लोगों ने काफ़ी की भी थी, ठीक है। प्रैक्टिस जो थी वो ये जो है कुछ बच्चियाँ करती रही थी मेरे साथ ही बैठ के प्रैक्टिस वगैरह, तो हम लोगों ने की भी थी प्रैक्टिस, मैंने करवाई भी थी स्टूडेंट्स को। तो ये है कि आप लोगों को अभी रिक्वायर्ड थी, तो उसमें जो है हम लोगों की आ गया, क्या आ गया भला, कोविड आ गया, कोविड की छुट्टियां हो गई, तो फिर उसकी वजह से उसके बाद फिर नहीं हो सकी थी, ऐसा ही हुआ था। बाकी मैंने तो अपने लिहाज से भी हम लोग कर ही रहे थे। यानी हाँ, टेक्साइटेशन में आपको पता चल गया है कि लास्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम जो होता है वो लास्ट नेम होता है, कोमा 998, कोमा, और पेज नंबर अगर मेंशन हो तो P.199 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल आपके सामने है इसकी। इन फैक्ट one technician suggests general wisdom of every new technology progresses through four phases: disbelief, hype, backlash, एंड फाइनली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। फेले लिखा हुआ है, फेले, कोमा 2006, कोमा P.53, ऑथर्स लास्ट नेम है, ईयर है, एंड पेज नंबर, ठीक है। इसका जो है वो काफ़ी डिटेल से और अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को बताया है, यहाँ पर स्लाइड में करने की कोशिश की गई है। बता दें आप लोग मुझे कि समझ आ रही है, जो नहीं समझ आ रही मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ, नो प्रॉब्लम विद मी।
जी क्लास, बिल्कुल ऐसा है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है? यस मैम, प्रैक्टिस तो की थी बट छुट्टियों की वजह से हाँ, उतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकी थी जितनी कि हो जानी चाहिए। अच्छा, एप्टप याद है आपको? वाह वाह, क्या क्या बात है नबीला रियाज आपकी। हाँ बिल्कुल, एप्टप याद है बच्चों को। ऑथर, पेज, पब्लिकेशन, एप्टप था। वेरी गुड भाई। आधा मुनीबा तारी को बस उसकी पड़ी हुई है अटेंडेंस की। मुनीबा आपकी अटेंडेंस हो जाती है, कल भी आप लेट आई थी लेकिन आपकी हो गई थी। और मुबीन तो गायब हो गई है। और हमारा है मीना बशर तो रहती है बेचारी एंड के लेक्चर तक। सुबह 9 बजे से लेके पूरे 3 बजे तक। Okay, text citation में क्या देखिए, even though you have put someone else ideas and information in your own words, कहते हैं अगर आप किसी की भी डाल रहे हैं ना, अपने own words में लिख रहे हैं, लेकिन ideas किसी के हैं, information किसी के, you still need to show where the original idea or information came from। तो आपको ये भी लिखना होता है कि ये आपने information और idea लिया कहाँ से है। This is all part of the academic writing process। academic writing में आप अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते, जो भी आप academic writing कर रहे होते हैं, ठीक है। मरियम तारिक है, मारिया ताहिर, ओके मारिया ताहिर आ गई है। इन टेक्स्ट साइटेशन, व्हेन citing in text within an assignment, use the author's or editor's last name followed by the year of publication, ठीक है। अब मेरे ख्याल से स्लाइड्स की भी आपको समझ आती होगी कि ऑथर का जो लास्ट नेम है वो ही उसका फर्स्ट नेम होता है, ठीक है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, एग्जाम्पल आता है वाटर इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी पर्सन's डाइट एंड of all the nutrients our body needs to function. It requires more water each day than any other nutrient. Whitney and Dolphus 2001 2011। ठीक है, ये डिफरेंट वेज हैं, 2-3 जो कि आप लोगों को बताए हैं। ये पढ़ें जरा इसको, स्लाइड का जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। जी क्लास, ठीक है।
आगे हम लोग अगर देखें इन द रेफरेंस लिस्ट 1 and 2 ऑथर्स, अगर 2 ऑथर्स हो, रेफरेंस लिस्ट एंट्री जब हम लोग करते हैं विचने कोमा ई डॉट कोमा एंड रूफल्स कोमा एस डॉट आगे पेरेंथेसिस में 2011 अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन 12th एडिशन, एडिशन को हम ईडी से करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, सिंगेज, लर्निंग, ये सारी जो रहते हैं पूरी एक रेफरेंस लिस्ट बनती है। अगर आप लोग अपने देखें ना उसमें भला किसमें, हाँ जी उसी में जो आप लोगों के रेफरेंस दिए हुए होते हैं बुक स्कैन पे, ठीक है, वो देखें तो उसमें जरूर आप लोगों को पता चलेगा ये सारा कि किस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलिए उर्वा, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ क्लासरूम को तो शाबाश, कोई भी मेडिकल की बुक लें उसमें से मुझे कोई लिख के दिखाएं, हाँ यहाँ पर इनबॉक्स करें, मुझे कोई रेफरेंस आपके पास लिखा हुआ होगा उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास कोई इस तरह से लिखा होगा, आप रेफरेंस लिस्ट में देखेंगी ना वहाँ पे जिस तरह ये विटनी खोमा ई डॉट खोमा रोफल्स लिखा हुआ है उस तरह से, ठीक है, यहाँ लिखें ताकि फिर मैं आप लोगों को उससे बता। दिस बुक डिडंट हैव अ सिटी फॉर अ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जस्ट अ कंट्री। पहले अगर सिटी और कंट्री दिया होगा तो पहले कंट्री लिखेंगे, उसके बाद आप लोग सिटी लिखेंगे, ठीक है। दिस बुक हैज एन एडिशन, एडिशन है तो वो ईडी से डॉट से शो करेंगे, जिस तरह पेज पी डॉट से करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड स्ट्रेट आफ्टर द टाइटल, टाइटल के फौरन बाद ही जो है आप लोगों का एडिशन लिखना होता है। टाइटल, टाइटल के साथ ही अगर एडिशन दिया हुआ तो एडिशन आ जाएगा, ठीक है। होते काफी ज्यादा, लेकिन अब आप लोगों को भी जाहिर है यू आर इन नाउ 3rd ईयर, तो 3rd ईयर में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है पीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, आप लोगों को अब तक आ जाना चाहिए पीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग ना। तो कोई भी अगर आपके पास है आप मुझे लिख के दें, इधर इनबॉक्स करें, मैं आप लोगों को जो है उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। मीनवाइल आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस लेते हैं मीनवाइल, और आप लोग ये कोई मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है। जी प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट तो बच्चे आप लोगों की लगाई देती हूँ मैं, लेकिन साथ में आप लोगों ने मुझे कोई भी रेफरेंस नहीं दिया उसमें लगा के हैं। आप रेफरेंस तो कम से कम मुझे बताएं ना कि हाँ जी ये रेफरेंस है, हम लोगों ने ये बताना है, वो तो आपको बताएं। Today is 29.
ठीक है, हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। एक्चुअली दूसरी चीज जो हमने देखी है ना वो ये है कंसिस्टेंसी। ठीक है, the extent to which all items on an instrument are maintaining the same equilibrium attribute। अगर जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं रिलायबिलिटी में, तो वो ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट हमने कलेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने जो एक इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किया वो था किसी डिजीज के नॉलेज के बारे में। ठीक है, मतलब मैं बात करूँगी कोविड-19 की नॉलेज की, हम नर्सेस। ठीक है, तो मेरे वो मतलब कोविड-19 के बारे में है, उसके नॉलेज के बारे में भी, क्योंकि मैंने कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन को नहीं ऐड कर दिया। ठीक है, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। हम रिलायबिलिटी में ये भी चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैंने नॉलेज के क्वेश्चनर में प्रैक्टिसेस का भी कोई एक अगर उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो वो कंसिस्टेंट